پہلے کی بات ہے کہ شہزاد پر گاؤں میں بالی نام کا ایک سود خور رہتا تھا۔ وہ بہت امیر تھا لیکن زیادہ کنجوس تھا۔ جتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ تھا دل اتنا ہی چھوٹا تھا اور اس کے دل کا میل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لوگوں کو ادھار دے کر ان کی زمینیں گروی رکھ لیتا، سود اتنا زیادہ لگاتا کہ چکانا مشکل ہو جاتا، اور جب سود چکانا مشکل ہو جاتا تو وہ زمینیں ہڑپ کر جاتا، اس کے بدلے مزید جائیداد کو گروی رکھ لیتا۔ ایک دن اس سے ایک علی نامی نوجوان ادھار مانگنے آتا ہے۔ علی کی والدہ اچانک بیمار ہو جاتی ہے اور اس کو اس کا علاج کروانے کے لیے دوسرے شہر حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ حکیم کی فیس اور سفر کے اخراجات برداشت کر سکے، تو وہ اس کے لیے بالی سے قرض لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علی بالی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مالک مجھے کچھ ادھار چاہیے، میری ماں بیمار ہے، اس کا شہر سے علاج کروانا ہے۔ بالی مل جائیں گے پیسے، لیکن زمین اور گھر گروی رکھنا پڑے گا اور سود ہوگا اٹھانی یعنی آدھا حصہ سود لگے گا۔ علی کتنا سود یعنی 1.5 گنا رقم واپس کرنی، میں کہاں سے اتنی رقم واپس کر سکوں گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں اور اپنا گھر چلاتا ہوں، رحم کریں تھوڑا سود کم کر دیں۔ بالی پیسے درختوں پر نہیں اگتے نوجوان، یہ پیسے لے جاؤ، زمین گھر گروی رکھ جاؤ، پیسے چکاتے رہو گے تو ایک دن اپنا زمین اور گھر چھڑوا لوگے، نہیں چکا پاؤ گے تو یہ چیزیں میرے قبضے میں آ جائیں گی، اس لیے میرا ٹائم ضائع نہ کرو، میرے پاس کرنے کی اور بھی بہت سے کام ہیں، اگر تو قرضہ چاہیے تو لے لو ورنہ جاؤ یہاں سے۔ علی وہاں سے ناراض ہو کر نکل جاتا ہے۔ اس کے دل میں انجانے خوف پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے اپنی ماں کا علاج کراؤں، کیا کروں کہ اس ظالم کے پاس کوئی اور نہ پھنسے، میں تو پھنس گیا ہوں۔ ابھی یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ایک آدمی کا نام آتا ہے، کیوں نہ میں اپنے وزیر کے پاس جاؤں، ہمارے ملک کا وزیر بڑا ہی اچھا آدمی ہے اور بہت سمجھدار ہے، بالی کی شکایت اس کو لگاتا ہوں، وہی اس پر کوئی ایکشن لے سکتا ہے۔ یہ سوچ کر علی وزیر کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ علی وزیر اسلام، وزیر السلام، کیسے ہو لڑکے؟ بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا پریشانی ہے بتاؤ مجھے، کیا مدد کر سکتا ہوں میں؟ علی وزیر، جی میں ٹھیک نہیں ہوں، بہت بڑی پریشانی اگ ہے، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ میری ماں بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج اس شہر میں نہیں ہو سکتا، اس کے علاج کے لیے مجھے دوسرے شہر ایک بڑے حکیم کے پاس جانا ہے، تو اس کام کے لیے مجھے بہت سے پیسے چاہیے تھے، تو میں ادھار لینے کے لیے بالی کے پاس گیا۔ بالی وہ جو سود خور ہے، تو اس نے 50% سود مانگا۔ وزیر، 50%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، فکر مت کرو میں کچھ کرتا ہوں۔ بالی کا بھی کچھ حل سوچتا ہوں، میں بادشاہ سے کہہ کر تمہارے گھر کل پیسے بھجوا دوں گا، جو ریاست کی طرف سے امداد ہوگی، اس سے اپنی ماں کا علاج کروانا، وہ پیسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی، بہت شکریہ وزیر، آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کی اور بادشاہ کی عمر لمبی فرمائے۔ وزیر، ٹھیک ہے نوجوان، جاؤ اپنی ماں کا خیال رکھو اور ان کا علاج کراؤ اور جنت کماؤ۔ وزیر بہت نیک آدمی تھا، لالچی اور ظالموں سے نفرت کرنے والا تھا، ہمیشہ غریبوں کے کام آتا اور جہاں کہیں ظلم دیکھتا تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، انصاف کرنے والا بادشاہ کا سب سے قابل وزیر تھا۔ ایک دن وزیر بیلو کے پاس جاتا ہے۔ بیلو، کیا وزیر صاحب آپ کو بھی پیسے چاہیے؟ وزیر، نہیں مجھے قرض کی ضرورت نہیں پڑی، میں تو بس ایک دعوت کے چکر میں ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی ہے جس کے لیے مجھے 2 دیگیں چاہیے، تو تمہارے پاس میں نے سنا ہے دیگیں ہوتی ہیں، تو مجھے کرائے پہ چاہیے، گھر میں دیگیں پکوائے گا اور ان کی دعوت کے لیے انتظام کروں گا۔
बाली ठीक है, ले जाएं, देंगे, हम तो हाजिर हैं इस काम के लिए, लेकिन 20 अशरफियाँ लगेंगी इस पर जो कि किराया है, किराए के बगैर कुछ नहीं मिलेगा, और अगर एक दिन से ज़्यादा होता है तो हर दिन का 20 अशरफियाँ किराया पड़ेगा, और दिनों का हिसाब से ज़रब देकर आपको वो किराया मुझे देना पड़ेगा। वज़ीर दिमाग में सोचता है कि ये कितना लालची आदमी है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहता। ठीक है, मुझे मंजूर है, और किराया देकर वो देगी ले जाता है। वो सीधा वहां से देगे लेकर घर आता है। अगले दिन वजीर बर्तन वापस करने आता है तो साथ 2 छोटी दीगचियां भी ले जाता है। वजीर बाली, ये आपके बर्तन, और ये बर्तन आपके 2 देगों के बच्चे हैं जो रात को देगों ने दिए। मैंने सोचा ये भी आपको वापस कर दूं, ये आपकी अमानत है और मैं अमानत में खयानत नहीं करता। बाली बर्तनों ने बच्चे में समझा नहीं। बाली हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं। वो वजीर की बेवकूफ़ी पर अंदर ही अंदर हंस रहा था। वजीर, हाँ, जब मैं रात को देगी रख कर सोया तो सुबह मैंने देखा कि इसके करीब ही 2 छोटी दीगचियां पड़ी हैं, तो मुझे लगा कि ये देगों ने बच्चे दिए हैं, ये आपकी अमानत है, तो मैं उसको अपने पास नहीं रखता, इसलिए आपके पास लेके आया हूँ। इसको रख लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाली उन चीज़ों को इनकार नहीं करता, बल्कि वो दोनों दीगची भी रख लेता है क्योंकि इसे इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। ठीक है वज़ीर जी, शुक्रिया, आप वाकई ईमानदार हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। अब जैसे ईमानदार आदमी से मिल के अब वज़ीर चला जाता है। अभी वज़ीर कमरे से बाहर निकलता ही है तो बाली खुद कलामी करते हो कहता है कि इस कामों को वज़ीर किसने बनाया, कितना बेवकूफ़ है ये बर्तन और बच्चे। बर्तन कहाँ बच्चे देते हैं, बर्तन तो बेजान है। मैं बादशाह होता तो इसे बावर्ची भी ना रखता, और बादशाह ने इसको वज़ीर रखा हुआ है। खैर, मेरा तो फ़ायदा ये हुआ है। चंद दिन बाद बादशाह वज़ीर को पूरा किस्सा सुनाता है। वज़ीर बादशाह को सारा वाक़या सुनाता रहता और बादशाह इसको सुनी जा रहा। पूरा वाक़या सुनने के बाद बादशाह कहता है, वज़ीर जी, खेल तो बहुत दिलचस्प हो गया है, बताएं आप आगे क्या करने जा रहे हैं। वज़ीर, बादशाह सलामत, अभी आपको नहीं बता सकता, अगर आपको बता दिया तो खेल का लुत्फ़ जाता रहेगा। अभी आप इस चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हों और देखिए। शाह, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। वज़ीर, मुझे पता है तुमने कोई बहुत ही गहरी चीज़ सोची होगी, और बहुत। मैंने बस आपसे इजाज़त लेनी थी इस काम की। बादशाह, मेरी तरफ से इजाज़त है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कामयाब होकर ही लौटोगे। वज़ीर अब दरबार से सीधा बाली के घर जाता है ताकि दोबारा देग ये किराए पर ले सके। वो बाली का दरवाज़ा खटखटाता है तो बाली बाहर निकलता है। जी वज़ीर जी, अब दोबारा आगी हैं, क्या हुआ, फिर कुछ ज़रूरत पड़ गई। वज़ीर, हाँ वाली, इस दफ़ा फिर मुझे ज़रूरत पड़ गई है, मुझे बहुत सारे बर्तन चाहिए। दावत बहुत लंबी चौड़ी है, आपके पास पता नहीं इतने बर्तन हैं भी या नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आप जैसे ईमानदार आदमी से ही बर्तन किराए पर दूंगा, किसी और से नहीं लूँगा। बाली, लो जी, हमसे ज़्यादा सामान इस शहर में किसके पास होगा। वैसे भी मैं आपकी ईमानदारी का फ़ैन हो गया हूँ। आज के ज़माने में अब जैसे ईमानदार लोग मौजूद नहीं, जितने मर्ज़ी चाहे बर्तन ले अब तो देगों के बच्चे भी वापस करके गए। ईमानदारी हर कोई थोड़ी दिखा सकता है। वज़ीर, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, ईमानदारी में तो अपना ही मज़ा है। मैं बर्तन निकाल देता हूँ, ये सब देगें अब बच्चे देने ही वाले हैं, क्यों नहीं, मैं उन्हें बहुत ध्यान से रखूँगा और बच्चे भी लूटा दूँगा।
बाली अच्छा आपका बिल बना 100 अशरफी वो भी अभी दे दे क्योंकि मैं तो बिल एडवांस में ही लेता हूँ। आपको तो पता ही है वजीर ये क्यों नहीं ये ले। और वो थैली निकाल कर उसको दे देता है। थैली में 100 अशरफियाँ होती हैं। वजीर बर्तन लेकर चला जाता है। बाली अच्छा मुर्गा फंसा हुआ है, इसे आनी दो फिर फंसा आएगा। वजीर इसके लिए जाल बिछा रहा होता है, वो इसे लालच में ला रहा होता है। और अगले दिन वजीर नहीं आता। बाली वजीर को इतने दिन तो हो गए हैं लेकिन वो नहीं रहा कराया तो इसने दे दिया है, लेकिन पुरानी के साथ नहीं दी कचियाँ भी तो दीनी है ना उसने। अब बाली को फिक्र लाहिक हो जाती है और बाली वजीर के घर की तरफ चला जाता है। वजीर आप यहाँ खैर तो है? बाली जी हाँ सब खैर है, मैं अपने बर्तन लेने आया, इतने दिन हो गए हैं मुझे आपका इंतज़ार करते हुए। मैंने कहा आपका पता तो करूं। वजीर इसी बारे में आपसे बात करनी थी, एक बहुत ही बुरी खबर है। आपकी सारी देगे बच्चे देते वक्त मर गई हैं। अब मैं आपको कुछ वापस नहीं कर सकता, मैंने उनको दफना दिया है। बाली ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, ये क्या कह रहे हैं? अब बर्तन कहाँ बच्चे पैदा करते हैं, वो तो बेजान होते हैं। ऐसा कभी किसी ने ना देखा ना सुना, मुझको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं इतना सादा नहीं हूँ कि आप मुझे बेवकूफ़ बना सके। वजीर जी मैंने सुना भी है देखा भी, अपने ही तो कहा था, भूल गया कि आपकी देगे बच्चे देने वाली हैं। ऐसा बाली में सुनने वाला नहीं, मेरी देगे वापस करो। वजीर जब वो मर गई हैं तो मैं कैसे लिटा दूँ, मेरे पास तो नहीं है। बाली तुम झूठे फ्राडिये, में तुम्हें बादशाह के पास ले जाऊंगा तो मैं इस अज़त दिलवाऊंगा। तुम धोखेबाज, में तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम सज़ा पाओगे। दोनों बादशाह के पास चले जाते हैं। बादशाह का दरबार लगा होता है। बादशाह को कुछ अंदाज़ा तो पहले ही था क्योंकि वजीर इसको बता चुका था। बादशाह बताओ क्या मसला है, किस वजह से? बाली बादशाह सलामत, ये वजीर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। वजीर मुझसे कुछ बर्तन लेके गया था, उसने बहुत से लोगों की दावत की थी, अब ये वापस नहीं कर रहा, मुझे मेरे बर्तन वापस दिलवाएं। बादशाह तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? वजीर बादशाह सलामत, बर्तन उसने मुझे दिए थे लेकिन इसके बर्तन चूँकि बच्चे देते हैं तो जो ही उन्होंने बच्चे दिए तो वो मर गए, बच्चे भी मर गए और बर्तन भी मर गए जो देगे थी, तो इसलिए मैंने उनको दफना दिया है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं और कैसे इसको बर्तन वापस करूं, मैं तो बेबस हूँ। बाली बच्चे इंसानों के होते हैं या जानवरों के होते हैं, बेजान चीज़ों के बच्चे नहीं होते। क्यों इतना बेवकूफ़ हो, जब देखे बच्चे देती ही नहीं है तो उम्र कैसे सकती हैं? वजीर अभी कुछ दिन पहले तो अपने बच्चे लिए थे मुझसे, अपने कुछ दिन पहले कहा था कि देखें आप लेके जा रहे हैं, ये भी बच्चे ही देने वाली हैं, तो जब ये बच्चे दें तो मुझे वापस कर दें और उनका ख्याल रखना। किया नहीं कहा था ऐसा बादशाह किया है? बाली तुमने इसे ऐसा कहा था? अगर नहीं कहा था तो फिर ये तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? क्या तुमने इसे इजाफी बर्तन वापस लिए थे? बताओ। तुम सुना है कि बहुत ज़्यादा लोगों से सूद लेते हो, लोगों की मजबूरियां का फ़ायदा उठाते हो, जुल्म करते हो, कर देकर ज़मीनों पर कब्ज़ा करते। माली बादशाह सलामत, में मुआफ़ी मांगता हूँ, मैं गलती पर हूँ, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। उगे से मैं उइंदा ऐसा नहीं करूँगा। बादशाह नहीं, तुम्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी वरना तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हें 5 साल कैद की सज़ा दी जाती है। इसके बाद इसको पहरेदार गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और उसकी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा जो उसने लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बनाया होता है, लोगों को वापस कर दिया जाता है।